Good morning, everyone. We were studying chapter 3 Computer Communication and Network. In this chapter, we have already studied about the wire transmission media and its classification, which was twisted pair cable, coaxial cable, and fiber optic cable. Now, in today's class, we are going to study about the wireless transmission media and its types. Wireless means you don't need any wire to transfer the data signal for a specific path. Okay, so the data signals are not bound to a cabling media. Cabling means you don't need any wires or something other to transfer your data. So this is called unbound media or unguided or wireless transmission media. Okay, its types are radio waves, satellite communication, infrared, Wi-Fi hotspot, Bluetooth, and microwave. You have already aware about the Bluetooth or Wi-Fi hotspot or infrared. Now we will talk about radio wave, satellite communication, and all other transmission media. First one is radio wave. Radio waves means it is using a radio frequency which is easier to generate, and because of its large wavelength it can penetrate through walls and structure alike. Radio waves are using radio frequencies which is easier to generate, and it can penetrate through walls and structure alike. The radio waves can have wavelength from 1 millimeter to 1 lakh kilometer. जो रेडियो वेव्स होती हैं उनकी वेवलेंथ 1 मिलीमीटर से 1 लाख किलोमीटर तक हो सकती है, एंड इट्स फ्रिक्वेंसी कैन बी रेंजिंग फ्रॉम 3 hertz to 300 gigahertz. 3 hertz is extremely low frequency and 300 gigahertz are extremely high frequency. तो इतनी लो फ्रिक्वेंसी से 300 gigahertz हाई फ्रिक्वेंसी तक रेडियो वेव वेरी कर सकती हैं, एंड इट can be divided into 6 bands such as bands की अगर हम बात करें तो X rays, gamma rays, alpha rays, VLF, LF, MF bands, these all are the part of radio wave, and it can grounded up to 1000 kilometer over the earth surface. earth surface पे 1000 किलोमीटर तक मूव कर सकती हैं, एंड जिसकी वेवलेंथ है वो ट्रैवल कर सकती है 1 मिलीमीटर से 1 लाख किलोमीटर पर. रेडियो वेव्स ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी आर prone to be absorbed by rain and other obstacles. They use लोनोस्फीयर ऑफ अर्थ एटमोसफेयर. ट्रैवल करने के लिए रेडियो वेव यूज़ करती हैं लोनोस्फीयर को, या फिर आप बोल सकते हैं ट्रोपोस्फीयर को. हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव सच एज HF एंड VHF बैंड्स आर स्प्रेड अपवर्ड. लोनोस्फेयर से ऊपर की तरफ जो बैंड्स होते हैं उनके अंदर हाई फ्रिक्वेंसी एंड वेरी हाई फ्रिक्वेंसी बैंड्स होते हैं. व्हेन दे रीच लोनोस्फेयर दे आर रिफ्लेक्टेड बैक टू अर्थ. रेडियो वेव्स के लिए जब वो लोनोस्फेयर या ट्रोपोस्फेयर तक पहुंच जाता है देन वो वापस से अर्थ की तरफ रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है. ओके, नेक्स्ट इज सैटेलाइट कम्युनिकेशन. एज यू नो इट इज़ अ पॉइंट टू पॉइंट लिंक विया सैटेलाइट माइक्रोवेव. जो सैटेलाइट अर्थ के आउटर स्पेस में एस्टेब्लिश्ड है उनसे कनेक्शन होता है. टू कीप द सैटेलाइट स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड बेस्ड स्टेशंस, the satellite is placed in geostationary orbit above the equator at an altitude of about 36,000 किलोमीटर. geostationary orbit जो है अर्थ के फोर साइड पे, वहाँ पे इक्वेटर पे ऑलमोस्ट 36,000 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे सैटेलाइट्स एस्टेब्लिश किए जाते हैं, एंड इनका कनेक्शन होता है अर्थ के ऊपर ग्राउंड बेस स्टेशंस में. As the spacing between two satellites on the equatorial plane should not be closer than 4 degrees, there can be 90 communication satellites in the sky at a time. एक पर्टिकुलर टाइम पे जब आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हो थ्रू सैटेलाइट तो देयर कैन बी 90 कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स एट अ टाइम. उस पर्टिकुलर टाइम पे आप 90 सैटेलाइट्स के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे होते हो. अ सैटेलाइट कैन बी यूज्ड फॉर पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन. As I already told you, it is also known as point-to-point link via satellite microwave.
ठीक है, माइक्रोवेव्स का यूज़ होता है, जो हमने रेडियो वेव पढ़ी थी उससे भी लोअर फ्रिक्वेंसी उनका यूज़ होता है। एंड इट इज़ पॉइंट टू पॉइंट लिंक, ग्राउंड स्टेशन का सेटेलाइट के साथ पॉइंट टू पॉइंट लिंक होता है, और इट कैन बी यूज टू ब्रॉडकास्ट अ सिग्नल रिसीव्ड फ्रॉम वन स्टेशन टू मैनी ग्राउंड बेस्ड स्टेशन। एज यू कैन सी इन द फिगर, जो ग्राउंड स्टेशन होते हैं, अपलिंक एंड डाउनलिंक का मतलब है अपलिंक जो सेंडर है एंड डाउनलिंक जो रिसीवर है, और इन दोनों को मैसेज को सेंड करने के लिए एंड रिसीव करने के लिए पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन करना पड़ता है थ्रू सेटेलाइट। ओके, एंड वन वे प्रोपेगेशन डिले इन रफली 270 मिलीसेकेंड। एक सिग्नल को रिसीव होने में या एक सिग्नल को सेंड होने में जो पर्टिकुलर टाइम डिले है वो है 270 मिलीसेकेंड का। ओके, यानी कि अगर हम प्रोपेगेशन डिले की बात करें तो ऑलमोस्ट 1 सेकेंड डिले होता है एक पर्टिकुलर सिग्नल को सेंड करने में और वापस उसे रिसीव करने के लिए, बिकॉज ऑफ इट्स एको। नेक्स्ट इज इंफ्रारेड। This type of transmission uses to send data by using infrared lights. Infrared lights होती हैं बेसिकली जो आप रिमोट एंड टेलीविज़न को यूज़ करते हो, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है दैट इज़ नोन एज infrared transmission. Okay, you can see the use of this type of transmission in your everyday life, like TV remotes, automatic garage doors, wireless speakers. These all are using infrared transmission media. Okay, and the infrared light transmit data through the air and can propagate throughout a room. एक रूम के अंदर आप उसे propagate कर सकते हो. That's why this is the most secured one transmission, and इट कैन नॉट बी पेनिट्रेट थ्रू वॉल्स। वॉल अगर बीच में है, कोई ऑब्स्टिकल है, तो उसे वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, बट अ पर्टिकुलर रूम के अंदर आप उसे यूज़ कर सकते हो। एंड दिस इज द कॉमन पीडीए। पीडीए मीन्स पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। अगर आपको टीवी को ऑपरेट करना है तो उसका पर्टिकुलर एक रिमोट होगा, आप उससे ही यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एसी के रिमोट से आप अपना टीवी ऑन कर सकते हो। सो दिस इज द पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ओके, in general language we can say this is the handheld devices. Next is Wi-Fi hotspot. Everybody are using Wi-Fi hotspot in today's life. ठीक है, आज के टाइम पे हर एक को Wi-Fi hotspot यूज़ करना आता है. A Wi-Fi hotspot is created by installing an access point to an internet connection. इंटरनेट कनेक्शन के लिए, उसे एक्सेस करने के लिए हम वाईफाई हॉटस्पॉट का यूज़ करते हैं. जैसे पहले हम राउटर का यूज़ करते थे, एक पर्टिकुलर राउटर होता था और उससे जितनी भी डिवाइस आप कनेक्ट करते थे उन सब के ऊपर इंटरनेट कनेक्शन एक्सेस हो जाता था. आज हर एक पर्टिकुलर फ़ोन के अंदर वाईफाई हॉटस्पॉट होता है. आपको अपना हॉटस्पॉट ऑन करना है एंड आप जो पर्टिकुलर दूसरे मोबाइल्स हैं जिनके अंदर इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल नहीं है, तो वाईफाई हॉटस्पॉट के थ्रू आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं. ओके, These are particularly using in airports, coffee shops. अगर हम मोबाइल की बात ना करें तो जनरली ये कहाँ कौन कौन सी प्लेसेस पे यूज़ हो रहे हैं आजकल. दिस इज़ द एयरपोर्ट, कॉफ़ी शॉप्स, होटल्स, बुक स्टोर्स एंड कैंपस environment are mostly using 802.11b is the most common specification for hotspot worldwide. जो पूरे वर्ल्ड के अंदर कॉफ़ी शॉप्स, एयरपोर्ट्स, होटल्स, बुक स्टोर, इन सब जगह पे यूज़ किया जाता है वाईफाई हॉटस्पॉट. दैट इज़ द 802.11b. बी मीन्स बाइट. 300 फीट तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं. बेसिकली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है. एक पर्टिकुलर कैंपस के अंदर आपने यूज़ कर लिया, एक पर्टिकुलर होटल के अंदर आप यूज़ कर रहे हो, रूम के अंदर यूज़ कर रहे हो, तो एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए आप वाईफाई हॉटस्पॉट को यूज़ करते हो. ओके, नेक्स्ट इज ब्लूटूथ. Bluetooth is a standard used in link of radio of short scope, designed to replace wired connection between electronic devices like cellular telephones, personal digital assistants, computers and many other devices. Bluetooth भी वायरलेस की तरह ही होता है, वाईफाई हॉटस्पॉट की तरह होता है, बट वाईफाई हॉटस्पॉट का आप यूज़ करते हो इंटरनेट एक्सेस करने के लिए. ब्लूटूथ का आप यूज़ करोगे अपनी इमेजेस या वीडियोस या जो भी आपका डेटा है आप उसको ट्रांसफ़र करना चाहते हो दूसरे मोबाइल पे, या फिर दूसरी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लाइक आप
कंप्यूटर में या लैपटॉप में भी अपना डेटा ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो यू कैन यूज़ ब्लूटूथ. इट इज़ अ वायरलेस मीडिया कनेक्शन. ओके, दिस टेक्नोलॉजी allows to the user intensely connection of voice and information between several devices in real time. एक पर्टिकुलर शॉर्टेस्ट टाइम पे आप अपना डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो विदाउट यूजिंग योर इंटरनेट कनेक्शन. ओके, Bluetooth requires that a low-cost transceiver chip be included in each device. जिस भी मोबाइल के अंदर या डिवाइस के अंदर आप ब्लूटूथ को यूज़ कर रहे हो, उसे एक्सेस करने के लिए आपके मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर एक ट्रांस रिसीवर चिप लगी होती है जिसके थ्रू आप ब्लूटूथ को एक्सेस कर पाते हो अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में. ओके, एंड दिस ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड एट होम, in the office, in the car, etc. Okay, next is microwave. Microwave are the electromagnetic waves about 100 megahertz tends to travel in a straight line and signals over them can be sent by beaming those waves toward one particular station. एक दो पर्टिकुलर जो स्टेशन है, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जो अवेलेबल हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रॉनिक वेव्स का जब ट्रांसफ़र होता है अबव 100 मेगाहर्ट्ज़, दिस इज नोन एज माइक्रोवेव ट्रांसमिशन. because microwave travel in straight line, both sender and receiver must be aligned to be strictly in line of sight. जब आप एक पर्टिकुलर माइक्रोवेव से सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हो, फॉर दिस एज आई टोल्ड यू कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है माइक्रोवेव, सो दैट्स वाई सेंडर एंड रिसीवर को एक स्ट्रेट लाइन ऑफ साइट के अंदर अलाइन होना कंपलसरी होता है. ओके, and microwave can have wavelength ranging from 1 millimeter to 1 meter and frequency ranging from 300 megahertz to 300 gigahertz. जो wavelength range है वो है 1 millimeter से 1 meter की, and जो frequency range है microwave के लिए वो है 300 megahertz to 300 megahertz to 300 gigahertz. Okay, and microwave को ट्रांसमिट करने के लिए आपको एंटीना को कंसंट्रेट करना होता है ऑन वेव्स. जितनी भी वेव्स माइक्रोवेव की ट्रांसफ़र होंगी वो एंटीनास के थ्रू होंगी एंड उसी से ही बीम को जनरेट किया जाता है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर. एंड माइक्रोवेव ट्रांसमिशन डिपेंड्स हाईली अपॉन द वेदर कंडीशन एंड द फ्रिक्वेंसी इट इज़ यूजिंग. जिस फ्रिक्वेंसी पे माइक्रोवेव वर्क कर रहा है वो भी इम्पॉर्टेंट है एंड वेदर कंडीशन पे भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अगर वेदर कंडीशन वर्स है तो वहाँ पे आप माइक्रोवेव का यूज़ नहीं कर सकते हैं. Our next topic is forms of data transmission. ये तो हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया कि हम वायर्स के थ्रू भी डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं और वायरलेस मीडियम भी यूज़ कर सकते हैं डेटा ट्रांसमिट करने के लिए. बट कौन कौन सा फॉर्म होता है डेटा ट्रांसमिशन का? ठीक है, दीज आर दी एनालॉग एंड डिजिटल. एनालॉग सिग्नल भी आप सेंड कर सकते हो एंड डिजिटल सिग्नल भी आप सेंड कर सकते हो. एंड नाउ first one is our analog transmission. It is a method of conveying voice, data, image, signal और video information. जब भी आपको वॉइस को सेंड करना है, डेटा सेंड करना है, इमेज है, सिग्नल है या वीडियो इन्फॉर्मेशन है, then you are using analog transmission. It uses a continuous signal varying in amplitude. As I already show you in the picture, एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं? कंटिन्यूस सिग्नल होते हैं जिनका एम्पलीट्यूड वेरी करता रहता है, फेज वेरी करता रहता है, या फिर कोई और अनदर प्रॉपर्टी होगी, फ्रीक्वेंसी को हम कंसिडर कर सकते हैं. सो दीज आर दी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेरिएबल, यानी कि जो वेरी कर रहा है एनालॉग सिग्नल के अंदर वो उसकी एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, सच एज एम्पलीट्यूड, फेज और फ्रीक्वेंसी. Analog transmission could mean that the transmission is a transfer of an analog source signal which uses an analog modulation method. एनालॉग सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए एनालॉग मॉड्यूलेशन मेथड का यूज़ किया जाता है. ओके, दैट मीन्स मॉड्यूलेशन का मीनिंग है कि सिग्नल्स का यूज़ किया जाता है डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, बट वो सिग्नल कौन सा होगा? कंटिन्यूस सिग्नल होगा. ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कैरियर सिग्नल, या फिर वो एक सिग्नल वेव की फॉर्म में भी हो सकता है. फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, दैट मीन्स FM and AM are the example of analog modulation. The transmission could also use no modulation at all.
जब भी आप एनालॉग का यूज़ करते हैं तो आपको किसी और फॉर्म में उसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप सिंपल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डिजिटल ट्रांसमिशन या फिर डिजिटल फॉर्म ऑफ डेटा ट्रांसमिशन. So a digital transmission is a discontinuous signal. Analog was continuous signal and digital is discontinuous signal that changes from one state to another in discrete step. As I already show you in this picture, यहाँ पे डिजिटल सिग्नल क्या है, एक डिसकंटिन्यूस सिग्नल है दैट इज चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर इन डिस्क्रीट स्टेप्स. डिस्क्रीट स्टेप्स में दैट मीन्स अगर एक टाइम पे वैल्यू 0 है तो सेकेंड टाइम पे 1 होगी. 0.1 या 0.2 आप नहीं ले सकते, बट एनालॉग मॉड्यूलेशन के अंदर हम डेसिमल वैल्यूज को भी कंसिडर कर सकते हैं. ओके, सो नाउ इन डिजिटल अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ डिजिटल मॉड्यूलेशन इज बाइनरी. बाइनरी एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू 0-1 का हम यूज़ कर सकते हैं, और 2 लेवल यानी कि 1 और 2 लेवल डिजिटल सिग्नल का या डिजिटल मॉड्यूलेशन का हम यूज़ कर सकते हैं for transferring a digital data. The optical signal is switched from a low power level to a high power level. Computer uses digital data. Optical signals, that means कि हमने जो fiber optics पढ़ा था, that was using the digital data transmission. And in data communication, computer first converted analog signal into digital signal. It is called modulation. Modulation क्या होता है? Basically analog signal को digital signal में transfer किया जाता है. Okay, so this is known as modulation. As same in telephone line, analog signal does not send. जैसे टेलीफोन लाइंस के अंदर एनालॉग सिग्नल को सेंड नहीं किया जाता, उससे पहले कन्वर्ट किया जाता है डिजिटल सिग्नल के अंदर एंड देन उसे सेंड किया जाता है. जब हम एनालॉग से डिजिटल में चेंज करते हैं दैट इज़ नोन एज मॉड्यूलेशन. ओके, एंड जब हम डिजिटल से एनालॉग में चेंज करते हैं दैट इज़ नोन एज डीमॉड्यूलेशन. दैट्स इट.